Let me record is sharing with you whiteboard. And now you will come to know I have taken what? I have taken a novel that is what The Sun Also Rises. The Sun Also Rises. RISES. You will come to know कि it came in 1926 1926 ईस्वी में ये आई हुई है The Sun Also Rises. इसके बारे में देयर आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस नॉवेल और उस पॉइंट्स को हमें नोट करना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इट्स द फर्स्ट मेजर नॉवेल. इट्स द फर्स्ट मेजर नॉवेल FIRST फर्स्ट मेजर नॉवेल ऑफ हेमिंगवे. Number two, it deals with the post-war disillusionment. It deals with the post-war disillusionment post-war disillusionment and moral disorder. This is the second point. सबसे पहला point कि it's the first major novel. और इसमें किसको लेके बात किया गया? It deals with the post-war disillusionment and moral disorder. Now the third point, you will come to know the hero of the novel is Jake Barnes. Jake Barnes, Barnes. Barnes is the hero. And Brett Asity is heroine. And Brett Asity, Ashety, is the heroine of the novel. Number 4 point, in the novel there is a triangular love affair. It's another important point. Triangular, love affair. Triangular love affair. And this triangular love affair occurs between Jake Barnes, Lady Brett Ashley, and Robert Cohen. तो एक we have to remember that कि there is a triangular love affair and it occurs between among Jake Barnes, comma. So again, I would like to tell you what I would like to tell you कि here is Jake Barnes is the hero and Brett Asty is the heroine. That is another point.
And in the novel, there is what? In the novel, there is a triangular love affair, and this triangular love affair occurs among जेक बार्नेस एक कैरेक्टर हो गए. जेक बार्नेस के अलावा नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज हु? द नेक्स्ट कैरेक्टर, लेडी ब्रेट एस्ली. लेडी ब्रेट एस्ली, ASHLEY, एंड रॉबर्ट कोहन. So again, I would like to tell you, it's the first major novel of Hemingway, and the particular novel deals what it deals with post-war disillusionment and moral disorder. There is a triangular love affair, and this triangular love affair occurs among Jake Barnes, Lady Brett Ashley. This is another important character, Lady Brett Ashley and Robert Cohen. इन सबको लेकर के बताया गया है. Uh, Now the fifth point, there is the mentioning of a cafe. There is the mentioning, MENTIONING, mentioning of a cafe, left bank cafe. There is a mentioning of a cafe, CAFE, कैफे. उसका नाम है लेफ्ट बैंक कैफे. So remember that कि this particular cafe, that is also important because जो लव अफेयर है और साथ ही साथ जो जेक का जो नेचर है वो ड्रिंक करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही पासेस his time, where he passes his time in this cafe. And we know it very well what happens in a, if there is a triangular love affair, especially if you have seen Indian movie, तो इंडियन मूवी का ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसे जो है ट्रायंगुलर लव अफेयर में क्या होता है या किस तरह की चीजें होती हैं. तो ब्रेट एशले एक तरह से सेंटर में है, बट ब्रेट एशले के लिए यू विल कम टू नो रॉबर्ट कोहन एंड समथिंग अदर जो कैरेक्टर है. लेडी ब्रेट एशले अगर वो सेंटर में है तो उनका जो अफेयर है या उनकी जो के प्रति चाहत दो लोगों की है, जेक का और रॉबर्ट कोहन का. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस इन ट्रायंगुलर लव अफेयर. अगर कहीं पे ट्रायंगुलर लव अफेयर है तो ऑलरेडी सो मेनी मूवीज, सो मेनी थिंग्स वी हैव गॉन, वी हैव सीन, and nothing at all. So the same traditional subject matter उसी particular चीज को लिया गया है. Yeah, there is another important point. वो चीजें क्या है कि that is if I use the मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन. So here in the relationship between Jake and Cohen, we find the same thing. And what is that? Ki there is means always suspect. Cohen always suspect on the behavior of his wife. So this is another important point. Ki that is what is doubt. That is what, that is the next point. Sixth point: doubt, dispute, and distraction. This doubt, dispute, and distraction not in society, but ultimately a family. Yeah, there are three characters, and those three characters are who? Those three characters are Jake Barnes, Lady Brett Ashley, and Robert Cohen. Especially in the relationship of Lady Brett Ashley and Robert Cohen, there is a what? There is a doubt, dispute, and distraction. So this is another point which we find in this novel. In this novel, you will come to know this particular point also. Ki there is a spirit of doubt, dispute, and distraction.
nothing at all, except it whatever you have to get. And there is one important point ki in the novel there is the theme of lost generation. There is the theme of lost generation. मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट जनरेशन में गैट्रू स्टेन या कौन सी क्रिटिक थी, गैट्रू स्टेन ही थी, उन्होंने कहा था कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर और स्कॉट फिट्जजेराल्ड ये सब लास्ट जनरेशन के लोग हैं। 3 लोगों का नाम गैट्रू स्टेन ने मेंशन किया हुआ है। तो यू विल कम टू नो दिस पार्टिकुलर, ये जो पॉइंट है द लास्ट जनरेशन की एक थीम या एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को इसमें रखा गया है। और जो लास्ट जनरेशन की आइडियोलॉजी है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है कि उनकी नजर में कि लास्ट जनरेशन के जो लोग हैं दे केयर अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप देन द इमोशनल अटैचमेंट देन द इमोशनल अटैचमेंट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने लास्ट जनरेशन के कॉन्सेप्ट को लिया है और लास्ट जनरेशन के कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट आता है कि उनकी नज़र में फिजिकल रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, इन कंपैरिजन ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। तो इस थीम को भी उन्होंने लिया हुआ है कि लास्ट जनरेशन के जो लोग थे उनका आइडियोलॉजी क्या था या वो किस में विश्वास करते थे। और यू विल कम टू नो कि ये जो नॉवेल है, एक पॉइंट करके ये नोट करके लिखना है कि दिस पार्टिकुलर नॉवेल, ये जो नॉवेल रहा है, दिस नॉवेल is addressed as the Bible of last generation। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस नॉवेल को क्या कहा गया है कि द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन, द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन। दिस इज अनदर important point which you have to take. So when you talk about the sun also rises, the sun also rises, it came in 1926 and there is what, there is a triangular love affair। इसमें एक triangular love affair दिखाया गया है और ये जो ट्रायंगुलर लव अफेयर है जैक बार्नेस, लेडी ब्रेट एशली एंड रॉबर्ट कोहेन के बीच में ऑकरिंग होता है, इसका ये घटित होता है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि दैट मीन्स ब्रेट एशले, दैट ब्रेट एशले यू विल कम टू नो कि शी फॉल्स इन लव विद रॉबर्ट कोहेन जो कि एक जीव है बट और एक बुल फाइटर भी है। बट यू विल कम टू नो उनका जो मैरिज होता है वह केवल सेंसुअस सेटिस्फैक्शन होता है, जो लास्ट जनरेशन का थीम भी है, जो लास्ट जनरेशन का थीम भी है। सो want to say what I want to tell you कि we have to remember these points कि जो अफेयर दिखाया गया है उस अफेयर में एक चीज नहीं देखने को मिलता, वह क्या है, दैट इज द इमोशनल अटैचमेंट। इंस्टेड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट देयर इज व्हाट, देयर इज अ फिजिकल रिलेशनशिप या यू कैन यूज द वर्ड की एक सेंसुअस सेटिस्फैक्शन इफ आई यूज द वर्ड। तो इसमें ये चीज दिखाया गया कि लास्ट जनरेशन के जो लोग थे, जो राइटर थे, उनका आइडियोलॉजी यही था। उनका आइडियोलॉजी क्या था कि वे सेंसुअस सेटिस्फैक्शन में, फिजिकल रिलेशनशिप में
उस पे विश्वास करते थे। और गर्ट्रूड स्टेन जो क्रिटिक रही हैं, उन्होंने इस लास्ट जनरेशन में 3 लोगों का नाम लिया हुआ है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर और स्कॉट फिट्जजेराल्ड का। ये मैंने पहले भी बताया था, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पार्टिकुलर चीज को, उसी लास्ट जनरेशन की आइडियोलॉजी को लेकर के ये नॉवेल लिखा गया है। और ये लास्ट जनरेशन की इस आइडियोलॉजी को 3 कैरेक्टर के माध्यम से बताया गया है, जेक बार्नेस, लेडी ब्रेट एस्ली, रॉबर्ट कोहेन। और उनका थॉट क्या है, कैसे उन सब में ट्रायंगल रिलेशनशिप होता है, और यह अनसक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? चूंकि जो सेंसुअल सेटिस्फैक्शन है, दैट्स ओनली फॉर सम टाइम, दैट्स ओनली फॉर सम डेज। एज द टाइम पासेस यू विल कम टू नो कि वह सेंसुअल सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगा। और इसी चीज को मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एक चीज देखने को मिलता है, वह चीज क्या है? डाउट, dispute and distraction. Doubt, dispute and distraction. This is another important point. Doubt, dispute and distraction. जो विक्टोरियन फिनोमेना था, जो विक्टोरियन कैरेक्टरिस्टिक थी, वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। Now the next novel, yeah, we are going to take the next novel. उनका जो next वर्क है, that is A Farewell to Arms. A Farewell to Arms. It came in 1929. And you will come to know when you talk about this novel, A Farewell to Arms. Uh, I'm not saying ki it's much significant, yeah, it's highly significant, but you have to go with the basic points of this novel. And number one point, you have to remember that when you talk about this novel, what do you find? इस नावल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। एंड रिमेम्बर दैट कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, ये किस पर है? इट्स बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज इटालियन कैंपेनर, हेमिंग्वेज इटालियन कैंपेनर, हेमिंग्वेज इटालियन कैंपेनर in which he participated and seriously wounded, in which he participated and seriously wounded. So you are getting here कि we are talking about his another novel, and that novel is A Farewell to Arms. It published in 1929. इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि यह ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और ये जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, एक घटना पर है। वो घटना क्या हुआ था कि इट्स बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज इटालियन कैंपेनर। जब वो इटली में कैंपेन पर थे, और तब वहां पर जो वो वुंडेड हो गए थे, इन विच ही पार्टिसिपेटेड एंड सीरियसली वुंडेड, इन विच ही पार्टिसिपेटेड एंड सीरियसली वुंडेड, उस घटना को लेकर के इसमें बताया गया। तो अगर इफ द क्वेश्चन कम्स की अ फेयरवेल टू आर्म्स व्हिच केम इन 1929, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बट बेस्ड ऑन which event? So it's based on Hemingway's Italian campaigner in which he participated and seriously injured. And you have to know कि when he wrote the first draft of this novel, what did he say? He said about this novel. Now that's a highly significant point. That is the third point about this novel. He himself said it is my own autobiography. About this novel,
he himself said, what did he say? He said, it is my own autobiography. It is my own autobiography, and myself is present everywhere in the novel. And myself is present everywhere in the novel. So another important point, उन्होंने खुद कहा था, when he prepared the first draft of this novel, he has given the statement. And what is his statement? His statement is that कि it is my own autobiography, यह मेरी खुद की autobiography है. And myself is, और मैं खुद इसमें मौजूद हूँ, myself is present everywhere in the novel, और हर जगह नावल में मैं खुद मौजूद हूँ. This is another important point. This is another important point which we see, which we find. Now the third point. Now the third point, that is the fourth point, I think. Frederick Henry, an American lieutenant in Italy. Frederick Frederick Henry, an American lieutenant, Eutenant, an American lieutenant in Italy, in Italy, who participates in the First World War, who participates in the First World War, is the hero of the novel. So this is another important point. वो कैरेक्टर का क्या नाम है? फ्रेडरिक हेनरी. ये काफी सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि फ्रेडरिक हेनरी और जो अमेरिकन लेफ्टिनेंट हैं और जो इटली में रह करके जो वर्ल्ड वार में शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो हीरो हैं. और हीरो होने का मतलब ये है कि खुद ब खुद जो राइटर आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर को किसके थ्रू दिखाया है? उन्होंने अपने कैरेक्टर को उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस अगर किसी कैरेक्टर में ढाला है तो कौन है? फ्रेडरिक हेनरी है. और इसको मैंने शायद पहले भी डील किया था कि फ्रेडरिक हेनरी वो सीरियसली वुंडेड हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन मोटर शेल. ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. आई थिंक हैव आई गॉन विद दिस नॉवेल क्या यस्टरडे? एंड व्हाट वाज द सेकंड? ओके ओके, फॉर हुम द बेल टॉल. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रेडरिक हेनरी जो अमेरिकन लेफ्टिनेंट है इन इटली हु पार्टिसिपेट्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार is the hero of the novel. That is another point. Now the next point, that is the fifth point, that's highly significant. You will come to know कि जो ये हीरो है वो जो है एक तरह से सीरियसली wounded हो जाते हैं by serving chocolate to the wounded soldiers.
or he was hospitalized in Milan where he fell in love with Catherine Barkley, a Scottish. The same subject matter I think कि for whom the bell tolls करके perhaps रहा होगा, कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट मैटर वी फाउंड हियर. सो यू विल कम टू नो, या जब उनका मैं हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पढ़ रहे थे वहां पे ये चीज आया हुआ था. तो नाउ द सेकेंड पॉइंट कि आपका जो हीरो है जो आपका क्या होते हैं कि ही वॉज सीरियसली wounded. हीरो ऑफ द नॉवेल seriously wounded. Seriously wounded by the Austrian mortar shell. By the Austrian mortar shell. Mortar shell by serving chocolate to the wounded soldier. This point is important. What was he doing by serving chocolate to the wounded soldier? So here you have to remember कि hero of the novel seriously wounded by the Austrian mortar shell by serving. What was he serving? He was serving chocolate. किसको he was serving chocolate? He was serving chocolate to the wounded soldiers. To the wounded soldiers. To the wounded soldiers. To the wounded soldiers. And you will come to know after this injury he was hospitalized. Where he was hospitalized after yeah, serving wounded soldiers, he was hospitalized in Milan. In Milan, where he fell in love, where he falls in love with Catherine Barkley. Catherine Barkley, a Scottish. A Scottish. So you will come to know कि they pass some beautiful time living with each other, a very happy summer together. But ultimately, you will come to know they also make the physical relationship, and the heroine becomes what she become pregnant. But you will come to know she the heroine means Catherine Barkley. She was not interested to marry this man because she has fear that she will sent back to England. Such a thing we find. But again, you will find the concept of the lost generation, sensuous एक तरह से अगर देखा जाए satisfaction, physical relationship, all these things. बट हॉरर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये चीज एक दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पे नजर आता है. सो व्हाट आई वांट टू से कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है और उसमें जो है ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, वेयर ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन मिलान, वेयर ही फॉल्स इन लव विथ कैथरीन बार्कले, जहाँ पे कैथरीन बार्कले से उनकी मुलाकात होती है, जो एक नर्स रहती हैं, उनकी एक काफी ज्यादा सेवा करती है, स्कॉटिश भी रहती हैं, एंड दे पास अ वेरी lovely days in the with each other, and all these things, and even they physically united, and you will come to know they make the physical relationship. But in at last we find that the heroine is not interested to marry because she thinks that she will be sent back to England. So that was due to the
हॉरर ऑफ वार कि अगर इंग्लैंड उनको भेजा गया तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। इस लव अफेयर के अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, हॉरर ऑफ वॉर, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। HORROR, हॉरर ऑफ वॉर। दिस इज एन अदर पॉइंट जो हमें नॉवेल में देखने को मिलता है। And there is another character, that is Catherine. Point number 7, Catherine, Catherine. Catherine, not another character, Catherine Barkley. Anyhow, he finds Catherine Barkley, and Catherine Barkley just gave birth to a dead child, and last में she died. Catherine Barkley gave birth to a dead child and dies. So it's a very tragic end of this character, a tragic end of this character. I think you can just compare uh, nothing she got in her life, if I use the word, और अगर हैमलेट के ओफिलिया से, वहां पे तो कोई सेंसुअस एफ्लिक्शन नहीं था, फिजिकल रिलेशनशिप की बातें नहीं थी, लेकिन जैसा ट्रेजिक एंड ओफिलिया का हुआ, द सेम थिंग वी फाइंड कि कैथरीन बार्कले गेव बर्थ टू अ डेड चाइल्ड, and she also dies, and she also dies. So this is the tragic end of this character, Catherine Barclay. So many other points. When you take a novel, you find that there is not a single character, या there is not a single event. So many events, so many things you find कि उस पर वो चलता है। तो ये एक ऐसा था जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रहा है, और उसमें कैसे उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा दिखाया गया है, जो उन्होंने कैथरीन बार्कले फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इटली मिलान में जब वो थे वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह की चीजों को इसमें दिखाया गया है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो चीज क्या है, हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वार, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, उस चीज को। नॉवेल का जो सेटिंग है वो कहाँ पे है, इटली में है। सेटिंग ऑफ द नॉवेल आकर्स इन इटली। नॉवेल आकर्स इन इटली। Yeah, note down these points. Give me only 1 minute. Okay. Yeah, now we can take another novel.
That is what Death in the Afternoon. Next novel is Death in the Afternoon. Death in the Afternoon, it published in 1932, 1932. And what do you find in this novel? You will come to know कि there are certain points which we have to remember. सबसे पहला पॉइंट कि ये जो नॉवेल है, द नॉवेल एक किस पर बेस्ड ऑन, इट्स बेस्ड ऑन बुल फाइटिंग इन स्पेन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है. ये नॉवेल किस पर है? बुल फाइटिंग इन स्पेन. इट्स बेस्ड ऑन बुल फाइटिंग इन स्पेन. बुल फाइटिंग इन स्पेन. Second point, the novel is in the form of discussion. The novel is in the form of discussion. Discussion between an old lady and novelist. An old lady and novelist. So you will come to know कि जो नॉवेल है या किसमें इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन है और किसको लेकर के बात की गई है. द नॉवेल इज इन द फॉर्म ऑफ discussion between an old lady and the novelist. I would like to delete this slide because we don't have space here. So you will come to know it's based on bull fighting. अगर एक क्वेश्चन आता है वो कौन सा नॉवेल है जो इसमें उन्होंने बुल फाइटिंग को लेके बात किया है. डेथ इन द आफ्टरनून. उसके पहले जो नॉवेल लिया गया था अ फेयरवेल टू आर्म्स, वो कौन सा था? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था जिसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के का जो एक हॉरर है उसको उन्होंने दिखाया हुआ है. उसके पहले जो नॉवेल लिया गया था द सन आल्सो राइजेस, उसमें ट्रायंगुलर लव अफेयर को दिखाया गया, ट्रायंगुलर लव अफेयर को. तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर उन्होंने लेकर के ये बुल फाइटिंग को, जो ये डेथ इन द आफ्टरनून है, दिस इज अबाउट व्हाट, इट्स बेस्ड ऑन बुल फाइटिंग इन स्पेन. द नॉवेल इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन. एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन बिटवीन एन ओल्ड लेडी एंड द नॉवलिस्ट. between an old lady and the novelist. Between an old lady and the novelist about the merits and demerits of bullfighting. About the merits and demerits of bullfighting. FIGHTI, bullfighting. So you find these thing कि इसमें पूरा का पूरा बुल फाइटिंग को लेके किस तरह से इसमें किया गया है और ऑकरिंग कहीं ना कहीं स्पेन में ही दिखाया गया होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ओल्ड लेडी है उसने बुल फाइटिंग के बारे में जो बात कही है, दैट्स अ हाईली सिग्निफिकेंट. दैट्स द थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो भी होगा, यू कैन नोट डाउन. बुल फाइटिंग को लेके वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या कहती है कि ओल्ड लेडी सेज, ओल्ड लेडी सेज इट इज अ ट्रेजिडी. इट इज अ ट्रेजिडी
ऑन द नेम ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। जो ओल्ड लेडी वो कहती है कि ये जो बुल फाइटिंग है या जो इस तरह की चीजें की गई हैं ये क्या है, ये अपने में ट्रेजिडी है। और किसके, ऑन द नेम ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के नाम पर जो है ये एक तरह का बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। तो वो इसका मतलब जो ओल्ड लेडी है वह बुल फाइटिंग का जो गेम होता है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि उसने जो पार्टिकुलर बात कही गई है कि यह मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसकी वो बात करती है। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें उसमें उन्होंने कहा कि इट इज अ ट्रेजिडी ऑन द नेम ऑफ इंटरटेनमेंट टू द ह्यूमैनिटी, आगे उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑन द नेम ऑफ इंटरटेनमेंट। नाउ अगेन आई हैव टू क्लियर दिस स्लाइड, टू ह्यूमैनिटी। नाउ सेंटेंस पूरा हो गया, ये उनका ओल्ड लेडी का स्टेटमेंट रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो होगा, बट द आथर इज, but the author is in the favor of bullfighting, bullfighting। ही सेज, वो उनका अपना क्या विचार है बुल फाइटिंग को लेके, लेडी के, ओल्ड लेडी का विचार तो अब हम लोगों के समझ में आ गया। लेकिन जो आथर है, आथर कहते हैं क्या, कहते हैं कि अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ऑनर, अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ऑनर, HONOUR, अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ऑनर एंड ब्रेवन इज बेटर, इज बेटर देन 100 years poor life, than 100 years poor life, than 100 years poor life on earth। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें दो आइडियोलॉजी चल रही है और दोनों आइडियोलॉजी किसको लेके बात करती है, बुल फाइटिंग को लेके बात करती है। और यह जो विचारधारा है, ओल्ड लेडी की अपनी अलग सोच है, राइटर का अपना अलग सोच है, और ये दोनों आइडियोलॉजी एक कन्वर्सेशन के थ्रू, एक डिस्कशन के थ्रू दिखाया जाता है। और वह डिस्कशन किसके फेवर में है, फेवर और अगेंस्ट में बुल फाइटिंग को लेकर के। ओल्ड लेडी कहती है कि यह मानवता के नाम पर एक तरह से हत्या है, जिस तरह से बुल फाइटिंग का गेम होता है। लेकिन जो आथर है वो कहते हैं नो, बट द आथर इज इन द फेवर ऑफ बुल फाइटिंग, जो आथर है वह बुल फाइटिंग के फेवर में है। और उनका एक कहना है कि जो इंसान पर डे की जिंदगी जी रहा है उससे बेहतर है कि अ शॉर्ट लाइफ की जिंदगी छोटी हो लेकिन उसमें सम्मान हो, बहादुरी हो, इज बेटर देन 100 years पुअर लाइफ। 100 साल की जो पुअर जिंदगी है उससे बेहतर है कि छोटी जिंदगी मिले लेकिन उसमें क्या हो, सम्मान और बहादुरी हो। तो बुल फाइटिंग को उन्होंने जो है एक तरह से, अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो उस लाइफ को उन्होंने ऑनर और ब्रेवरी के कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है। तो दो विचारधारा आथर की और ओल्ड लेडी की अलग अलग चलती है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड, अभी एक वर्ड यहाँ पे छूटा हुआ है कि ब्रेवन इज बेटर देन 100 years पुअर लाइफ ऑन अर्थ, पुअर लाइफ ऑन अर्थ। सो नाउ यू फाइंड दैट द स्टेटमेंट, ये जो चीजें हैं ये लगभग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से जो है डेथ इन द आफ्टरनून, दैट इज अ नॉवेल 1932 जो बुल फाइटिंग पर बेस्ड ऑन है, जो एक कन्वर्सेशन या एक तरह से कहा जाए कि एक डिस्कशन के फॉर्म में है, नॉट कन्वर्सेशन बट डिस्कशन के फॉर्म में, बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द नॉवलिस्ट।
in which we find merit and demerits of bullfighting. What is the opinion of the novelist and what the opinion the old lady has, उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है. नाउ एक उनका और नॉवेल है, दैट इज व्हाट की ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका. Another novel of that man is Green Hills of Africa. It came in 1935. Green Hills of Africa. It came in 1935. इसमें भी कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजी या फिलॉसफी नहीं है, लेकिन इसमें नॉवेल में उनके हेमिंगवेज के एडवेंचर्स इन अफ्रीका को दिखाया गया है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, द नॉवेल टेल्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ हेमिंगवे, ADVEN, Ventures of Hemingway in Africa. एंड जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि उनका एडवेंचर होता है, और वह एडवेंचर किस रूप में होता है, वहाँ पे ही शॉर्ट लायंस, बुफेलोज, डियर, मतलब एक तरह से जो है वहाँ पे वो शूटिंग वगैरह करते हैं. नथिंग एट ऑल. तो ये लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बट आई फाइंड कि द नॉवेल इज अबाउट हुम, द नॉवेल इज अबाउट द adventures of Hemingway in Africa. And this adventure is what type of adventure? It's about shooting. वहां का जो उन्होंने एडवेंचर दिखाया है वह क्या है, शूटिंग को लेकर के है. ऐसा नहीं कि माउंटेनियरिंग है, क्लाइंबिंग है, नो, नॉट एट ऑल, बट दैट्स अबाउट शूटिंग. So I'm just deleting this slide, and you will come to know second important point कि the adventure is in the form of shooting. The adventure is in the form of shooting. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में उन्होंने सारे नावल्स अफ्रीका के लिए हैं, और अफ्रीका के लोगों से उनकी इंटीमेसी यहाँ पे दिखाई गई है. तो कैरेक्टर्स जो हैं वे अफ्रीका के हैं. कौन कौन से हैं? एक तो कैरेक्टर का नाम है कांडिस्की. कैरेक्टर्स में एक है कांडिस्की. सेकेंड कैरेक्टर पैन. थर्ड कैरेक्टर कॉर्ल. फोर्थ कैरेक्टर मकोला. So these are the characters which we find, which we see. कैरेक्टर्स कैंडिस्की, पैन, कॉर्ल, मकोला, ये अफ्रीकन कैरेक्टर हैं. दूसरा चीज यहाँ पे एक और पॉइंट आपको लिखना है, नॉवेल में एक और चीज दिखाया गया है, इंटीमेसी विद अफ्रीकन. इंटीमेसी ऑफ ऑथर विद अफ्रीकन. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो यू कम टू नो अबाउट व्हाट की जो इसमें एडवेंचर है वह एडवेंचर किस रूप में, शूटिंग के रूप में है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कैरेक्टर कौन कौन सी है, कांडिस्की है, पैन है, कॉर्ल है, मकोला है, सब अफ्रीकन कैरेक्टर है. और एक और चीज दिखाया गया है, इंटीमेसी ऑफ आथर विद अफ्रीकन. इंटीमेसी आथर का इंटीमेसी अफ्रीकन के साथ दिखाया जाता है. तो दीज आर द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट या थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. एंड नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने इस नावल को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है. यू विल गेट दैट मैटर इन बुक. आई डोंट थिंक कि उसको यहाँ लिखवाने की जरूरत है, उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है. यू विल गेट दैट मैटर कि 4 जो उसका जो हेड्स है वो क्या क्या है, परसूट एंड कन्वर्सेशन,
pursuit remembered, pursuit and failure, pursuit as happiness. All these things we find. So this is these are the points. Now I'm going to take another novel, To Have and Have Not, because today I want to conclude this writer. जो भी अगर एक आध novel बचा रहेगा, तो when you receive book या when you get book, you will be able to find all the points. उसमें कुछ ऐसा नहीं है. तो मैं जितना डिस्कस आज कर सकता हूँ उतना मैं कर दे रहा हूँ. टू हैव एंड हैव नॉट. This novel you will come to know it came in 1937. 1937 में ये आती है नॉवेल उनका, टू हैव एंड हैव नॉट. व्हाट्स अबाउट दिस? यू विल कम टू नो इट्स अ नॉवेल जो कि उन्होंने इसमें उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही है, दैट इज व्हाट की द मोरलिस्टिक अप्रोच. MORALISTIC, द मोरलिस्टिक अप्रोच to make our life sublime, to make our life sublime. Instead of ethics and current problem of society. Instead of ethics and current problem of society. Current problem of society. एक तरह से कहा जा सकता है कि यह उनका बहुत ही मेच्योर नॉवेल रहा है, जिसमें उन्होंने जिंदगी को जो समझने का, जो देखने का नजरिया था, या जो उनकी आइडियोलॉजी थी लाइफ को लेकर के, उसको उन्होंने इस नॉवेल में बदला है. और उन्होंने क्या बदला है? उन्होंने नॉवेल में जो है द मोरलिस्टिक, एक नैतिक उपदेश जो होता है उसको देने की कोशिश की हुई है, कि उसके माध्यम से हमारी लाइफ सबलाइम होगी, हमारी लाइफ में शांति या हमारी लाइफ बेहतर होगी. ना कि उन्होंने इस नॉवेल में इसको चीज को दिखाने की कोशिश की है एथिक्स एंड करेंट प्रॉब्लम. उन्होंने इसके पहले के जो नॉवेल थे, जैसे वर्ल्ड वार का हॉरर था, या जो है और जो प्रॉब्लम्स बुल फाइटिंग को लेकर के उनकी बात थी, तो उस वो जो पॉइंट होता था, जो करंट इश्यूज होते थे, करंट प्रॉब्लम्स होते थे, उसको ना उठा करके उन्होंने पहली बार, अगर ये कहा जाए, कि अपने नॉवेल में मोरलिस्टिक अप्रोच को लिया हुआ है. और उनकी नजर में दिस इज द मोरलिस्टिक अप्रोच दैट इज हाईली हेल्पफुल टू मेक आवर लाइफ सबलाइम, जो हमारी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकता है, या काफी हद तक बेहतर चीजें कर सकता है. और इसमें आप देखेंगे कि इस नॉवेल के जो हीरो हैं हैरी मॉर्गन है. जस्ट आई वांट टू डिलीट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. हैरी मॉर्गन is the hero of the novel. हैरी मॉर्गन क्या है? ही इज द हीरो ऑफ द नॉवेल. और नॉवेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि द नॉवलिस्ट टेल्स अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, यही डिलीनिएट्स अमेरिकन सोसाइटी. ही डिलीनिएट, ही का मतलब नॉवलिस्ट, DELINEATES, ही डिलीनिएट्स अमेरिकन सोसाइटी. और उस अमेरिकन सोसाइटी को जब उन्होंने डिलीनिएट किया है, तो स्टोरीज कई ऐसी है जो उन्होंने लेकर के बताई है, जिसमें हैरी मॉर्गन जो मेन कैरेक्टर है, उनको सिचुएशन को, खास करके जो एक कंडीशन है कि कितना पुअर लाइफ वो व्यतीत करते हैं,
और कैसे उनको एक रिच बिजनेसमैन जो है धोखा देता है। तो इसका मतलब एक उन्होंने जो ही डिलिनिएट्स अमेरिकन सोसाइटी, तो उस अमेरिकन सोसाइटी में उन्होंने क्या दिखाया है, पहला पॉइंट जो उन्होंने दिखाया है, गैप गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर। एक एक उन्होंने हैरी मॉर्गन के माध्यम से इस चीज को दिखाने की कोशिश की है, और कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी को उन्होंने दिखाया। तो इसके जो हीरो हैं हैरी मॉर्गन है, और इसमें अमेरिकन सोसाइटी को दिखाया गया। उस अमेरिकन सोसाइटी में एक बड़ी चीज देखने को मिलती है कि गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको हमें देखने को मिलता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज, या लेट मी डिलीट इट, लेट मी डिलीट इट। नाउ द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अमेरिकन सोसाइटी में है, कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबन्स। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबन्स, क्यूबन्स की समस्या को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या इंटरफियर रहता है क्यूबन्स को, क्यूबन्स हु आर लिविंग इन अमेरिका, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के भी बात की गई है। सो दीज थिंग्स वी फाइंड कि ये चीजें ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो इस नॉवेल में डील किया गया है, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कैपिटलिस्ट मेंटालिटी, और कौन सा है, क्यूबन प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबन्स को लेकर के उनको जो है डील किया गया है। नाउ द लास्ट नॉवेल आई वुड लाइक टू टेक, दैट इज व्हाट, दैट इज द अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, 1950, 1950। So this is the new. Let me record it, sharing with you. Across the river and into the trees, river and into the trees. It came in 1950, and remember that when we talk about this novel, Across the River and Into the Trees, that came in the 1950, सबसे पहला चीज की ध्यान में रखना है, इस नॉवेल का जो सेटिंग है वेनिस, द सेटिंग ऑफ द नॉवेल आकस, द सेटिंग of the novel occurs in Venice. Number one point,
second important point, there is an important character, Colonel Cantwell. Colonel Cantwell is the central character. और यू विल फाइंड दैट कि जो कॉलोनल कैंटवेल हैं, इनको जो है, जो अनडाउटली ही इज एन आर्मी पर्सन, लेकिन इनकी नज़र में जो आर्मी की लाइफ है, या जो आर्मी पर्सन्स है, या उनका जो लाइफ है, जैसे ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, बहुत ऑनरेबल है। नो, एज एज ग्रोन अप मैन वो देखते हैं कि जो आर्मी का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टीडियस है, आइसोलेटेड है। तो एक पॉइंट ये है कि ही का मतलब कॉलोनल कैंटवेल, ही फाइंड्स दैट दैट आर्मी पर्सन्स लाइफ आर्मी पर्सन्स लाइफ आर्मी पर्सन्स लाइव्स, LIVES, आर टीडियस, कामा बोरिंग। उन्होंने बताया कि जो आर्मी पर्सन्स की लाइव्स है वो कैसी ही टीडियस है, बोरिंग है और आइसोलेटेड है, एंड आइसोलेटेड। कॉलोनेल अपनी जो है बिलव्ड रेनिटा को ओल्ड एज में याद करते हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तो देर इज अनदर कैरेक्टर रेनिटा, RENETA, रेनिटा इज हिज बिलव्ड का मतलब कि कॉलोनेल की, रेनिटा इज हिज बिलव्ड whom he remembers in last days of his life। और वो याद करते हैं कि जब वो आर्मी पर्सन थे, रिटायरमेंट से पहले जो उनकी लाइफ थी उसमें कैसे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड सो मेनी लव मेकिंग एलिमेंट्स वो चीजें थी, तो पास्ट लाइफ को अपने याद करते हैं बिफोर रिटायरमेंट। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो देखते हैं कि ही इज एलोन, देयर इज नो वन टू आस्क हिम, कोई भी देयर इज नो वन टू गिव हिम कंपनी। तो एक तरह से जो है, एक आदमी वन हु इज इन जॉब, जॉब के समय उसकी लाइफ कैसी होती है, और जब वह जॉब से रिटायरमेंट मतलब उसको रिटायर हो जाता है तब उसकी लाइफ कैसी होती है, उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज दैट कि व्हेन समवन इज इन जॉब, व्हेन समवन इज, तो यहाँ पे मैंने जो बात किया था रेनिटा को लेकर के बात किया है। उसके पहले हमने बात किया है कि जो उनका आइडियोलॉजी है कि आर्मी पर्सन्स का जो लाइफ है वो कैसी होती है, बोरिंग है, टीडियस है। फिर मैंने बताया कि व्हेन समवन इज इन जॉब ही फील्स लाइफ इंटरेस्टिंग, बट आफ्टर रिटायरमेंट
but after retirement, no one gives a company to Colonel. No one gives a company to Colonel. तो इस तरह से एक अकेलापन उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, तो नथिंग अल्टीमेटली हियर, तो एक उन्होंने एक क्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज करके इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। एक्सेप्ट इट, आई मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स आई हैव टेकन, बट इसके अलावा यू विल कम टू नो, अ मूवेबल फीस्ट है, आइलैंड इन द स्ट्रीम है, द गार्डन एडन है, कुछ उनके नॉवेल उनके मरने के बाद आए हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर उनको लेके जो बात होती है द ओल्ड मैन एंड द सी तक होती है। ओल्ड मैन एंड द सी में सेंटियागो का प्लस जो मर्लिन मछली का कल सारा जिक्र मैंने किया था। तो आई हैव डन उनका जो इम्पोर्टेंट नॉवेल था, उनका जो बायोग्राफिकल स्टडी था वो मैंने कर लिया। लेकिन मेरा करने कहने का मतलब ये नहीं है कि इतना ही आपको करना है। आपको बुक आपके हाथ में अब है, उसमें जो है कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अमूवेबल फीस्ट उनका वर्क जो उनके मरने के बाद आया, आइलैंड इन द स्ट्रीम है, द गार्डन ऑफ एडन है, और उन्होंने कुछ कॉलम वगैरह लिखे हुए थे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बात करना होगा। उनकी शॉर्ट स्टोरीज है, उसको लेके आपको बात करना होगा। तो व्हेन यू रिसीव द बुक, या दोज हु हैव रिसीव्ड बुक यस्टरडे या उसके पहले जो है, वो सब लोग आज ही जो है उनके उस रिमेनिंग पार्ट को स्टडी कर लेंगे जिसको कि मैंने नहीं कराया है। और हमने क्या कराया, उनका बायोग्राफिकल स्टडी और जितना इंपॉर्टेंट नॉवेल था आई हैव डन। सो आई थिंक कि नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्टिकुलर आथर। छोटा छोटा स्टोरीज वगैरह का दो दो लाइन का उनका इंफॉर्मेशन है वो बचा हुआ है, तो आप अपने आप से कर सकते हैं। जब तक बुक नहीं थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब नाउ द बुक इज इन योर हैंड, तो थोड़ा सा आपको अपने आप से प्रयास करना पड़ेगा। नाउ लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस। या इन दिस वे वी हैव डन, और अगर किसी को कुछ कहना है तो नाउ यू कैन से समथिंग, अदरवाइज आई हैव टू कंक्लूड दिस सेशन। वी विल मीट इन द इवनिंग। जी। जी। या yeah madam, yeah, give me time, I will explain it in the evening session, because I myself is getting late and I have to go to college. Oh, yeah, whatever the query you have, you can drop in WhatsApp group. You can drop in WhatsApp. After completing this PGT writer, PGT may one more remains, that is VS Naipaul. After completing VS Naipaul, we will explain. ओके, ताकि इसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। पीजीटी का इधर मॉर्निंग का जो आप लोगों का बैच चल रहा था वो हो जाएगा, फिर सारी बात मुझे इवनिंग वालों के साथ करनी होगी। ओके। और अगर किसी को जिनको वो है बुक नहीं रिसीव हो पाई है, नहीं ऑर्डर दे पाए हैं, वो लोग सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर उनको पहले भी शेयर किया है, फिर से मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। और अगर उनको सीधे यहीं से ही मैं कह दूंगा तो चली जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। कॉलिंग नंबर है 8188 65653। व्हाट्सएप नंबर है 9450592038। चूंकि ज्यादातर लोगों को मिलना शुरू हो गई, दो जिनको नहीं मिल पाई है या ऐसी जगह रह रहे हैं, तो वे मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज सकते हैं, दिस नंबर पे 9450592038। इफ एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी, ही कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, we will meet in the evening. Whatever the problem you have, I would be able to discuss in the evening, because I have to go to college.